इस वक्त खालिस्तान तहरीक चल रही है और कश्मीर की आज़ादी की तहरीक भी चल रही है। कब तक कामयाब हो जाएंगी ये तहरीकें? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਭੈਣ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਕਦੋਂ ਪਾਉਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ 50 ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30-30 40-40 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ खड़े होने का। राइट। भारत में 7 रियासतें जिन्हें 7 सिस्टर रियासतें कहा जाता है, वहाँ पे बदअमनी फैल रही है, वहाँ पे मुख्तलिफ तहरीकें भी चल रही हैं। क्या आपने जैसे कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा शायद रोल पाकिस्तान का भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई है। भारत के अपने लोग कैसे देखते हैं इन तमाम मामलात को? देखो ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਨੇ ਜੀ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ मोदी है। सारी दुनिया के सामने ये गल खुल चुकी है। राइट। सो मोदी हुकूमत अपने खुद कहा कि फुटप्रिंट है जो इस वक्त हुआ है पाकिस्तान में, जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में मासूम बच्चों को मारा गया है। उससे पहले भी जो उन्होंने सिविलियन एरियाज में अटैक किया था भारत ने, उस वक्त भी बच्चों को टारगेट किया गया था। ये किस तरीके से देखते हैं आप इसको? ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ। ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਾਊਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਬ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹੀ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਮਲਾ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 95 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 'ਚ ਸਾਡੇ 30,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। राइट। सो आपने कभी पाकिस्तान आने का सोचा है? पाकिस्तान कदों आओगे तुसी? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਸ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦਿਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
अमेरिका और कैनेडा वांगू बार्डर खुले होंगे, पाकिस्तान जेड़ा हैगा वो खुल के पंजाब वाल आएगा, पंजाब खुल के पाकिस्तान वाल जाएगा, ते हिंदुस्तान तबाह करके असीं उन्हां दा नक्शा दुनिया तो मिटावांगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। जो बात हमने अभी 7 स्टेट्स के हवाले से की, 7 सिस्टर स्टेट्स, उसके ऊपर कुछ रोशनी डालते हैं। भारत पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने की साजिश कर रहा है, लेकिन खुद भारत को कश्मीर, खालिस्तान समेत दर्जनों अलहदगी पसंद तहरीकों का सामना है। आज हम आपको भारत की मशहूर ज़माना 7 सिस्टर्स रियासतों का जिक्र कर रहे हैं। ये रियासतें कौन कौन सी हैं और कैसे भारत के हाथ से निकलने जा रही हैं, इन पर नज़र डाल लेते हैं। भारत में इस वक्त दर्जनों अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, जिनमें से कुछ अंदरूनी खुद मुख्तारी और कुछ भारत से आज़ादी की ख्वाहिशमंद हैं। भारत के शुमाल मशरिक में 7 रियासतें वाक़ हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, जो भी पुन्नू साहब ने जिक्र किया। उनमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इन रियासतों का मजमूई रकबा 2,62,230 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि मजमूई आबादी 4.5 करोड़ से ज़ायद है। सबसे पहले रियासत अरुणाचल प्रदेश। ये रियासत भूटान, भारत, म्यांमार और चीन के दरमियान मौजूद है। रियासत के एक बड़े रकबे पे चीन दावा करता है कि ये इसकी मिल्कियत है। 1962 की जंग के बाद चीन ने इस इलाके पर कब्जा ज़रूर किया, लेकिन फिर जल्द ही मैकमोहन लाइन पर वापस चला गया। चीन आज भी इस रियासत को जनूबी तिब्बत का इलाका करार दे रहा है। 2020 में चीन ने वादी गलवान समेत रियासत के कई इलाकों में पेशकदमी कर ली थी। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम जिंगान रख दिया है और इसकी 27 मुकामात के नाम भी तब्दील कर दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं और अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं। नेशनल सोशलिस्ट काउ नस्ल ऑफ नागालैंड और अरुणाचल ड्रैगन फोर्स यहाँ की बड़ी अलहदगी पसंद तंजीमें हैं। अरुणाचल ड्रैगन फोर्स रियासत की सबसे बड़ी मुसल्लह तंजीम है, जो अरुणाचल प्रदेश की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप कि इसके ऊपर आपको डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे हम कुछ दिनों में। फिर आते हैं रियासत आसाम की तरफ। रियासत आसाम भारत की 7 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत है। 1906 तक आसाम बंगाल का हिस्सा था। 1963 में आसाम से नागालैंड रियासत अलग की गई। 1972 में आसाम से ही रियासत मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को अलग किया गया। 1970 से ही रियासत आसाम में अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं। इनमें मुस्लिम लिबरेशन टाइगर्स, आसाम राइफल्स, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम सरे फहरिस्त हैं। 1990 में अलहदगी पसंद तहरीक ने जोर पकड़ा तो भारतीय फौज ने आसाम में 12,000 अफराद को कत्ल कर दिया, जिन पर उन अलहदगी पसंद तंजीमों के रुकन होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। 2012 में रियासत आसाम में फसादात शुरू हुए, जिनके हवाले से कहा गया कि 1947 में तकसीम हिंद के बाद ये सबसे बड़े फसादात हैं, जिनमें 4 लाख अफराद बेघर हुए और अक्सरियत उनमें मुसलमानों की थी। 2019 में रियासत आसाम में भारतीय हुकूमत ने शहरियत की हतमी फहरिस्तें जारी की, जिनमें 19 लाख शहरियों को इस फहरिस्त से ही निकाल दिया गया। निकाले गए तमाम अफराद बंगाली मुसलमान थे। सो एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है भारत की स्टेट का। फिर आते हैं रियासत मणिपुर पर। मणिपुर रियासत की सरहद मशरिक में म्यांमार से मिलती है। 1949 में मणिपुर का इल्हाक भारत के साथ हुआ था। 1956 में मणिपुर में अलहदगी की तहरीक शुरू हो गई। 1958 में भारत ने यहाँ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नाफिज किया, जो कि मजीद तसादुम की वजह बना। मणिपुर में 2 बड़े ग्रुप्स हैं, मणि ग्रुप और दूसरा कोकीजोमी ग्रुप के नाम से मशहूर है। मणिपुर में 60 मुसल्लह ग्रुप काम कर रहे हैं, जिनमें से 30 का ताल्लुक कुकी ग्रुप से है। मणिपुर में असल लड़ाई मीती और कोकीजोमी कबाइल के दरमियान है, जो कि नस्ली फसादात की वजह बनती है। 2010 से 2013 के दरमियान मणिपुर में नस्ली फसादात और हंगामों में 125 अफराद हलाक और 40,000 अफराद ने नकल मकानी की। 2022 के रियासती इलेक्शन में कोकी ग्रुप ने बीजेपी की हमायत का ऐलान किया और बदले में भारतीय हुकूमत ने कोकी ग्रुप की नस्ली फसादात की कार्रवाइयों पर आंखें बंद कर ली। 2023 में मणिपुर में मेती ग्रुप की जानिब से कोकी ग्रुप की खवातीन को बरहना करके शहर में घुमाया गया, जिसके बाद फसादात शुरू हुए। 120 अफराद से ज़्यादा लोग मारे गए। फिर रियासत मेघालय। 1972 में आसाम से गारू और जयंतिया के इलाके को मिलाकर मेघालय रियासत बनाई गई थी। इसकी डिटेल्स भी आपके सामने हैं। फिर रियासत मिजोरम, जो कि 1972 में मिजोरम को असम से निकालकर यूनियन का दर्जा दिया गया। 1987 में उसे भारत की रियासत बना दिया गया। इस रियासत में मीज़ो कबाइल आबाद हैं। यहाँ पर बदअमनी की बड़ी वजह आसाम से आबादी की मुंतकली और आसामी आबादी की रियासती अमूर में बढ़ता हुआ असर रसूख है।
रियासत नागालैंड में भी, जो भारत की छोटी रियासत है, 1947 में नागालैंड के नागा कबाइल ने भारत से इल्हाक करने से इनकार कर दिया था, लेकिन भारत ने नागा कबाइल के इलाकों पर फौज कशी के जरिए कब्जा किया था, जिसको वो अभी तक भुगत रहे हैं। उसकी डिटेल्स आपके सामने हैं। रियासत त्रिपुरा 7वीं सिस्टर स्टेट है। ये 3 अतराफ से बांग्लादेश से घिरी है और इस रियासत में बदअमनी की वजह भी 1970 में बंगालियों की तिरापुर में आमद है। बंगालियों की आमद के बाद रियासत में आबादी के तनासुब में तब्दीली आने लगी, जिसके खिलाफ 1990 में रियासत के कबाइल ने हथियार डाल दिए। सो डिटेल्स आपके सामने हैं। 7 सिस्टर स्टेट, जहाँ पे हर तरफ भारत की जो पॉलिसी है उसकी वजह से ना सिर्फ लोग अलग होना चाहते हैं, अलहदगी की तहरीक है, बल्कि उनको साथ डिक्टेटोरियल रूल के ज़रिए, कवानीन के ज़रिए, कवानीन में तब्दीली करके, फोर्स इस्तेमाल करके हर तरीके से जुल्म उठाया गया। उसके बावजूद जो झूठा नारा लगाता है शाइनिंग इंडिया का भारत, वो खुद ही अब एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है।